Good evening. All right. Okay. So yesterday, we finished the topic of prospectus, right? There are four types of prospectus: red herring prospectus, deemed prospectus, abridged prospectus, and shelf prospectus. Okay, and every kind of prospectus has got their own purpose. Later on, we discussed about the misstatement in prospectus. Okay. So misstatement, it has got two kind of liabilities. I mean, misstatement in prospectus can attract two kind of liabilities. One is civil liability as given under section 35. Sorry. And the other was the criminal liability as it was given under section 34. Okay. Now, the next topic we were supposed to discuss was private placement. So prospectus was all about to uh, get money to raise funds from general public. Okay, so that was the prospectus. Next, we have the second mode. I believe you people must have remembered the diagram which I have shared with you. See, yesterday we completed with prospectus. Next is the private placement. All right, private placement. Okay. Now, what is private placement? According to section 42, private placement जो होता है scheme that is made only to the selected group of persons who have been identified by the board and they are known as identified persons, and it shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed, excluding QIBs, which is qualified institutional buyers and employees of the company being offered securities under the scheme of ESOPs, yeah, employees stock option. So private placement is actually made to limited number of people, ठीक है, and that number shouldn't exceed 50. ठीक है, okay, right? And that number 50, it should exclude QIBs. QIBs क्या होते हैं? जैसे QIBs आपके पेंशन फंड वाले जो आपके इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, पेंशन फंड हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हैं, एल आई सी कह रही हूँ, मतलब हाँ भाई, इंश्योरेंस वाले जो कंपनीज होती हैं, ये आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ये काफी बल्क पैसा डालते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। खैर ये तो स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। इफ यू वांट टू रेज द फंड्स, यस यू कैन अप्रोच टू देम। नेक्स्ट है आपका एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड द स्कीम ऑफ ईसॉस। तो छोटा सा पॉइंट है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, लाइक मतलब लाइक एक एडवांस्ड में हो सकता है, अगर मान लो कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, तो उस आईपीओ को जस्ट the moment the IPO gets accessible to the general public, so just before few days पहले ही अपने एम्प्लॉयज को वो ऑफर करती है, एंड कुछ अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। So that is known as employee stock option. So these two categories will not be included under 50 numbers. So आपको यहाँ इतना ध्यान देना है कि private placement is been defined under section 42. ठीक है, it is being given under section 42. And the maximum number of persons to whom private placement has been offered is 50. That's it. What is the maximum number of persons in case of private company? Any guesses? Maximum number of person कितने होते हैं private company में? Yes, any answer? Private placement 200, very good. ठीक है, and उसमें से maximum 50 will come from where? Private placement. Now my next question is, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड्स रेज कर सकती है? यस, यस और नो? क्या पब्लिक कंपनी? यस। सो प्राइवेट प्लेसमेंट जो आपको ऑप्शन है, दैट इज यूज्ड बाय बोथ काइंड ऑफ कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है देखो जो थर्ड मोड था,
बोनस इशू एंड राइट इशू. ठीक है, राइट इशू और बोनस इशू, दिस इज द थर्ड ऑप्शन. सो देखो, let us just revise it again. Public company, private company. The public company can raise funds through three modes: prospectus, private placement, right issue और bonus issue. जो right issue और bonus issue है, ये आपका एक तरीके का issue होता है, मतलब like share issue करने का एक तरीका होता है. तो इसको पढ़ने से पहले we will first complete share capital. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी हैज गॉट ओनली टू मोड्स: प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू. तो देखो, दोनों का एक ही तरीका है, लेकिन प्रोस्पेक्टस यहाँ पे एड ऑन है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. प्रोस्पेक्टस इज ओनली मेंट फॉर जनरल पब्लिक. जहां जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी वहीं आपका प्रोस्पेक्टस आएगा. ठीक है. Since private company cannot raise capital through general public, that is why prospectus option is not given under private company. ठीक है. अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, बोथ आर कॉमन इन दीज टू कंपनीज एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस. सो हैव क्लैरिटी ओवर दिस. ठीक है. प्रोस्पेक्टस कैन नेवर बी इशूड बाय द प्राइवेट कंपनी. Okay, so to understand bonus issue and right issue, we have to understand what is share capital, because these are the way the, I mean, होते तो वो equity shares हैं, but the fact is that it's a kind of, they are actually backed by some kind of theme. और वो theme क्या है, वो theme समझने के लिए पहले आपको share capital समझना होगा. So what is share capital first of all? So it's the capital of a company divided into number of indivisible units of fixed amount that is known as share. As simple as that. ठीक है. What is share capital? Capital of a company. देखो, कंपनी बिना पैसे के नहीं चलेगी. तो वो जो पैसे, जिस पैसे को कंपनी बोरो करती है, या किसी से अपने ही मान लो किसी से बोरो करेगी, कहीं से इन्वेस्टमेंट लाके जो भी अपना फंड्स रेज करती है, एंड उसी कैपिटल को इन्वेस्ट करती है अपने एसेट्स वगैरह खरीदने में. ठीक है. तो बिना पैसे के ऑब्वियसली नथिंग कैन वर्क, कंपनी भी नहीं चल सकती है. तो जो कैपिटल जो है आपका, ठीक है, जो कंपनी जो पैसे लगा रही है, ठीक है, दैट कैपिटल इज बीन डिवाइडेड इनटू इनडिविजिबल यूनिट्स. ठीक है, दैट इज नोन एज शेयर. मान लो कि 10 करोड़ का कैपिटल रेज किया है किसी एबीसी कंपनी ने. सो दैट 10 करोड़ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स. 10 करोड़, 10 करोड़ कैपिटल मीन्स 10 करोड़ शेयर्स. अब इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. अगर 1 रुपए है तो 10 करोड़ शेयर होंगे, अगर 2 रुपए है तो वैसे आप कर सकते हो. ठीक है, तो 5 करोड़ हो गए. तो बात ये है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, दैट इज नोन एज शेयर. So share means a share in the share capital of the company and includes stock. The definition is given under section 2, clause 84. So basically share होता क्या है? एक आपका यूनिट तो है ही आपके कैपिटल का. A share is a right to participate in the profits made by a company while it's a going concern. So apart from being an unit of that particular capital, share एक right represent करता है कि that yes, you are eligible to participate in the profits which is being made by the company. क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो कंपनी को, वही पैसे कंपनी is going to invest to buy its assets या जो भी काम होगा उसका. Plus for that money which you have invested into the company, for that you are getting the equitable value of share. ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख लगाया किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो मुझे 1 लाख की वैल्यू का मुझे शेयर मिलेगा. और वो जो मुझे शेयर मिलेगा, दैट इज द पार्टिसिपेशन, कि मैं जो कंपनी में जो प्रॉफिट होगा मैं उसमें हिस्सा लूंगी. ठीक है, ये होता है आपका शेयर. शेयर मतलब हिस्सा, तो वही आप समझ लीजिए. ठीक है, आपने कैपिटल लगाया कंपनी में, आपने पैसे दिए कंपनी को, उतने ही वैल्यू का कंपनी आपको शेयर उठा के दे देगी. फिर जितना उसको प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा. ठीक है. सो शेयर बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट्स राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स. ओके, एक बार और अच्छे से जान लेते व्हाट इज शेयर. जस्ट अ मिनट.
A share is not a sum of money, but it is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability and of interest. ठीक है, but also consisting of series of mutual covenants entered by the shareholders inter se. In India, a share is regarded as a stock according to section 44. Share certificate prima facie is the evidence of the title. It has been mentioned under section 46. तो देखो, शेयर इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ मनी. सो लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर दैट इन रिटर्न you are getting the share of that particular value, whatever amount you have invested in that company. So that is the interest which is being represented. ठीक है, ओके. क्यों? ताकि आके लाइबिलिटी वगैरह आपकी कैलकुलेट करने के लिए, मान लो कंपनी वाइंड अप होगी तो जितना आपके पास पेंडिंग रहेगा तो आप उतना पैसा दोगे. खैर उसमें मत जाओ आप, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट है वो. बट आप इतना समझिए, टू बी इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, शेयर जो है इट बेसिकली क्रिएट्स द इंटरेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट. ठीक है, एक ओनरशिप आपको दिखाता है. ठीक है, एक ओनरशिप आपको रिप्रेजेंट करता है कि दैट यस यू हैव इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट. तो आपका इतना जो है अमाउंट जो है ये आपका ओनरशिप है, इतने हिस्सा है कंपनी में. ठीक है, मैं जनरल पब्लिक की अगर बात करूँ तो देखो, जनरल पब्लिक के पास ठीक है, कोई 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है. तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहां पे बहुत नहीं परसेंटेज होता है. ठीक है, दैट माइट कंप्राइज 1%, 2% और मे बी इन पॉइंट, पॉइंट पॉइंट में रिप्रेजेंट करता है. तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो जनरल पब्लिक को बुलाया जाएगा फॉर मीटिंग. तो नोटिस वगैरह आ जाता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट. बट यस, शेयर देने का यही मतलब है कि आपका इतना हिस्सा है इस कंपनी में. शेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड्स. मतलब ये आप कहां से पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो? टू द ट्रांसफरेबिलिटी. In case of public company, you can easily transfer the shares. Okay, you can easily transfer the shares to the other person. But in case of private company, yes, you can do it. But yes, it is quite restrictive in nature. Okay, so that is why the shares is being regarded as goods which can be transferred from one person to the other. And shares को वो क्या कहते हैं, एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. आजकल नहीं दिया जाता है, अब फिजिकल फॉर्मेट अब खत्म ही हो गया है. सो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है दैट क्रिएट्स अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल. दैट्स इट. ये छोटी छोटी चीजें हैं. नाउ योर शेयर कैपिटल इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेजरली टू पार्ट्स. एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल. Firstly, let's understand what is preference share capital. So it means a part of share capital with a preferential right with respect to payment of dividend. And in the event of winding up preferential right to be repaid the amount of capital paid on such share. So देखो, preference share capital, it's that part of share capital जिसका preferential right होता है over the payment of dividend. ठीक है, और plus in the event of winding up प्रेफरेंशियल राइट रहेगा टू बी रीपेड. अब देखो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग विद दिस. ऑलराइट, देखो ये आपका शेयर कैपिटल है. ठीक है, शेयर कैपिटल प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल. चलो, प्रेफरेंस में क्या होता है कि दे आर गोइंग टू हैव अ प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड. डिविडेंड आपका कुछ नहीं है, डिविडेंड आपका है, इट्स अ रिटर्न. रिटर्न इफ देयर इज अ प्रॉफिट. ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा प्लस रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में मिलेगा. रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में. ठीक है, और जो लास्ट में जो कुछ बचा कुचा होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है. देखो होता कैसे है,
मान लो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ठीक है, प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो सबसे पहले रिपे करेगी कंपनी, डिबेंचर्स लोगों को कर देगी, ठीक है, पहले डिबेंचर होल्डर को जाता है पैसे, इनको डिविडेंड नहीं मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले जितने भी डिबेंचर होल्डर होंगे, लोन होल्डर होंगे, मतलब जिनसे लोन ली है कंपनी, उनको सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेगी। फिर बाद में आप प्रेफरेंस देख लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर मिलेगा। इन बीइंग देखो जितने भी शेयर होल्डर हैं, अगर रिटर्न ऑन प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर दे दैट विल बी नोन एज डिविडेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, यस, type yes if it is yes. Okay, right. So once the profit has been earned by the company, firstly it will be repaid to debenture holders, interest जो भी होगा, and that is a fixed amount. इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड अमाउंट ही होता है, 5% होगा, 10% होगा, जितना भी होगा, इट इज बीन डिसाइडेड बाय द कंपनी। फिर जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी रिपेड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जो उनको प्रॉफिट दिया जाएगा दैट इज नोन एज डिविडेंड। और इनका भी फिक्स्ड डिविडेंड रहता है, जैसे हो सकता है 8% हो, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ना कंपनी की, तो ऐसे दिखाएगा 8% हो सकता है, 2% हो सकता है, तो उसके हिसाब से ये लोग डिविडेंड दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लास्ट में आता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, आई मस्ट से दैट दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों होते हैं अभी बताती हूँ। तो जो इनके पास बचा कुचा प्रॉफिट रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर होल्डिंग, ठीक है। किसी ने अगर 10,000 शेयर होल्ड कर रखा है तो उसको उस हिसाब से मिलेगा रिटर्न। किसी ने 1 लाख शेयर होल्ड करके रखा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सॉरी डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है एंड एज पर प्रॉफिट मिलता है। इनका ऐसा कोई फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट नहीं होता है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ही डिविडेंड अमाउंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रेफरेंस शेयर कैप preferential right the preference shareholders basically enjoy। प्रॉफिट हुआ, पहले डिबेंचर होल्डर, लोन, जितना भी इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनको पहले कंपनी पे करेगी, फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास आएगी, जितना परसेंटेज वाइज उनका दिया गया उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करेगी। लास्ट में जो होगा बचेगा इक्विटी होल्डर्स का होगा, नहीं बचा कोई बात नहीं, बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रेफरेंस over the dividend। and the next point is regarding repayment of capital। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस टाइम पैसे लौटाती है अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसमें भी यही वाला हायरार्की फॉलो करना है, पहले अपने डिबेंचर होल्डर्स को रिपे विपे करके हटाएगी, फिर बाद में आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं, लास्ट में आपका जो भी बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी का मैं बताती हूँ। as I have said that they are actually considered to be the real owners of the company। the reason to that is just a minute, ठीक है। चलो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 में दिया गया है that the equity shares are those shares which are not preference shares। After satisfying the rights of preference shares, the equity shares shall be entitled to share in the remaining amount of distributable profits of the company, not fixed dividend, and recommended by the board of directors of the company and declared by the shareholders in AGM। एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है कंपनी में, राइट, साल में एक बार होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसी में डिसाइड होता है कि भाई ठीक है इतना प्रॉफिट बच रहा है तो चलो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ही जाते हैं एजीएम में, हम जैसे जनरल पब्लिक नहीं जा सकते, ठीक है। एंड देन इज एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी
share capital therein shall have a right to vote in every resolution placed before the company. That is why I'm saying that जो equity shareholders होते हैं ना, they are, I must say, मतलब ये, this is not just to make you understand, I'm saying this, that the equity shareholders, they can be considered as the real owners. The reason to that is, firstly, they have got the right to vote on every resolution. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास सबकी राइट, मतलब लाइक राइट टू वोट नहीं होती है, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मैटर होगा उसमें राइट होगा, वरना सारे मैटर्स में जो भी कंपनी में चल रहा है, अफेयर्स हो रहे हैं, ओवर दैट the only equity shareholders are having right to vote. ठीक है, this is the primary point with respect to the equity shareholders, and they are the real risk holders. ठीक है, risk holders in the sense कि देखो लास्ट में ही इनको मिलेगा सब चीज, लास्ट में ही इनको प्रेफरेंस दी जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एंड जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं विद इन अ कंपनी, दे आर टेकन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. दैट्स इट. ठीक है, तो एक छोटा सा है ये, कंसेप्चुअल चीजें हैं, बेसिक सा है, इतना बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेक्शन ध्यान रख सकते हैं, रखना है तो, अदरवाइज बस आप थीम जाने रहिए, दैट इज इनफ. नाउ some important terms. Private placement we have just covered. ठीक है, according to section 43 explanation 1 देखती हूँ क्या लिखा है मैंने. Private placement means any offer or invitation to subscribe or issue securities to a selected group of persons other way. Yeah. ठीक है, private placement is actually provided to the selected group of persons, and that too they are known as identified persons. Okay, and that number shouldn't go beyond 50. एक नेक्स्ट होता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स, मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे. सो स्वेट इक्विटी शेयर्स दे आर आल्सो काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड उनको प्रोवाइड किया जाता है उन एम्प्लॉइज को या उन मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है विद इन अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन दी आईपीआर और वैल्यू एडिशन. कोई भी मान लो किसी बंदे ने, कोई एम्प्लॉय ने पेटेंट वगैरह करा लिया है, उसने अपना कुछ भी इन्वेंशन या कोई मतलब लाइक वैल्यू एडिशन वाला उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए जाते हैं. ठीक है, थ्रू अ कंपनी. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप, यू मे से, स्कॉलरशिप टू द ब्राइट एम्प्लॉइज. स्वेट इक्विटी, स्वेट मीन्स दिस स्वेट. So just to recognize their hard work, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह दे सकते हैं कंपनी. अब आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज राइट इशू एंड बोनस इशू. Right issue has been given under section 62. Right issue is an issue of capital to be offered to the existing shareholders of a company through a letter of offer. देखो right issue क्या होता है? It's an also a mode to raise a capital to raise funds in a company. तो राइट इशू में बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसे उठाती है. ठीक है, और उनको उतने ही वैल्यू का उतने ही वैल्यू का शेयर्स भी दे देगी. सो रादर देन गोइंग आउटसाइड, रादर देन गोइंग टू द जनरल पब्लिक, रादर देन अप्रोचिंग जनरल पब्लिक, तो जो अगर जैसे मान लो बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है या बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, सो यस कंपनी कैन गो फॉर राइट इशू. उसमें क्या करेगी, अपने ही शेयर होल्डर्स को बोलेगी कि या वी आर हैविंग राइट इशू, सो यू कैन परचेज दी शेयर्स ऑन दिस XYZ, जो भी है आपका रेट पे आप खरीद सकते हो. ठीक है, राइट इशू तो अपने ही जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं से ही पैसे उठाएगी. तो ऐसे क्या होगा, शेयर होल्डर्स का यहाँ पे शेयर बढ़ जाएगा. ठीक है, वो लोग खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा उनका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा. प्लस ये जो प्रोस्पेक्टस वाला जो सीन है, ठीक है, उसके लिए खर्चा भी नहीं लगेगा कंपनी का, और बैठे बैठे घर से ही, घर के ही शेयर होल्डर से उन्होंने पैसे उठा लिए. ये होता है आपका राइट इशू. नेक्स्ट आता है आपका बोनस इशू. बोनस इशू इज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 63. So when a company accumulates large distributable profits, it converts these profits into capital, divides the capital among the existing members in proportion to their entitlements. देखो बोनस शेयर क्या होता है, बेसिकली इट इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 63. So for example, किसी भी साल में, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, इफ द कंपनी हैज अर्नड अ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट डिविडेंड, सो एज अ प्रॉफिट वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी.
ठीक है, शेयर होल्डर्स को. सो rather than distributing profits, what they are going to do, प्रॉफिट मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय वो क्या करेगी, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उतने ही वैल्यू का. अगर मान लो कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड एज पर द फाइनेंशियल ईयर जो भी ये प्रॉफिट आया है, एजीएम में डिस्कस हो गया कि चलो मुझे ये डिस्कस हुआ कि चलो ठीक है, एक एक बंदे को 10-10 हजार का डिविडेंड मिलना है. मतलब जैसे मान लो 2 रुपए पर इक्विटी शेयर ऐसे ऐसे मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 हजार का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, ठीक है, कैश मिलना चाहिए था. कैश इन द सेंस मतलब वही आपका अकाउंट में आएगा. डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए था. सो नाउ व्हाट कंपनी इज डूइंग, rather than directly giving me dividend, rather than giving dividend, what the company is doing, मुझे 10 हजार कैश देने के बजाय 10 हजार के मुझे शेयर्स दे देगी. और तो इससे देखो दो काम हुआ. क्या हुआ, मेरा शेयर बढ़ गया, शेयर होल्डिंग बढ़ गया इन अ कंपनी, और कंपनी अपना प्रॉफिट भी बचा ली. ठीक है, प्रॉफिट बचा ली, और वो जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में टर्न हो गया कंपनी के. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? येस और नो? येस और नो? यस, yes everyone, yes, I'm waiting for the response. Okay, okay. So rather than getting dividend, what I have got same value of shares, and the company has basically saved those profits, and those profits will be converted into capital. वो प्रॉफिट एज अ कैपिटल अपना बचा ली, अब वो प्रॉफिट को अपना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाई. तो घर में बैठे बैठे राइट इशू, बोनस इशू के थ्रू कंपनी कैन रेज द कैपिटल, एंड बोथ कंपनीज कैन डू द सेम. मतलब प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दे बोथ कैन रेज फंड्स थ्रू राइट इशू और बोनस इशू. ठीक है, ऑल राइट, yes or no? I hope it is clear all the modes through which the funds are raised within a company. ठीक है, all right. Excuse me, ma'am. Ma'am, even private placement is for both the companies. Yes, yes. Okay. So that was all about like how private company and public company can raise the funds. Now let us see a little comparison between the terms like transfer and transmission. As we have already, when we were discussing about the features of company, therein we had done that the company can transfer the shares. In case of public company, the transferability is quite easy, but in case of private company, it is quite restricted. But there is this other term which is known as transmission. But transfer और transmission में difference क्या होता है? Let us just understand. ये भी एक छोटा सा concept है, कर सकते हो, ऐसा बहुत कोई major concept नहीं है, ठीक है. But फिर भी you should, since CLAT PG it does demand basic framework. Okay. चलो, तो ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय वॉलेंटरली और डेलिबरेट एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यस, ट्रांसफर अगर करना है आपको तो ऑब्वियसली ये वॉलेंटरी आप कर सकते हो. इफ यू आर डूइंग इट वॉलेंटरी, इट इज ट्रांसफर. ट्रांसमिशन इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ और इंसॉल्वेंसी. ट्रांसमिशन देखो क्या कब ऑपरेट होता है, इट डज ऑपरेट थ्रू अ लॉ. अगर मान लो शेयर होल्डर की डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली किसी और को ट्रांसमिट हो जाएंगे. ठीक है, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट विल बी नोन एज ट्रांसमिशन. और ट्रांसफर जहां शेयर होल्डर अपने मन से किसी को भी वॉलेंटरली ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर. ट्रांसफर इज an instrument of transfer is required in case of transfer. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर अगर आपको करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस अग्रीमेंट वगैरह टाइप का रहता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, कि हाँ आप इस बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो. लेकिन ट्रांसमिशन के केस में देयर इज नो सच इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज बीन ऑपरेटिंग थ्रू लॉ.
आप तो खत्म हो गए, आपने तो बिना बताए आप खत्म हो गए, तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली किसी और को ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, बट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज देखो एक ब्रॉड टर्म है, सिक्योरिटीज में आपकी शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, ठीक है। So transfer and transmission, it can happen in both kind of situations. मतलब both kind of situation in the sense, in case of share also, in case of debentures also. Transfer is complete, the liability of transferor ceases. शेयर कंटिन्यू, बट ठीक है, ट्रांसफर देखो, ट्रांसफर के केस में अगर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो जो ट्रांसफर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे को ट्रांसफर कर रही हूँ शेयर, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, तो मेरी जो लाइबिलिटी होगी शेयर से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी, अब उसका हेडेक होगा सामने वाले का, ठीक है। ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा, शेयर्स कंटिन्यू टू बी द सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या है, यस, तो ट्रांसमिशन में देखो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स टू दी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के पास सारी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी पिछला पहले का था लाइबिलिटीज वो भी सारी ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज यस दिस ट्रांसमिशन हैज बीन डन थ्रू दी डेथ और इंसॉल्वेंसी। अगेन आई एम टेलिंग, ये छोटे से कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत पढ़ने की जरूरत है, इतना देख लो सफिशिएंट है, ठीक है। ये क्लास में ही आपका हो गया, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेट अस आल्सो सी द कंपैरिजन बिटवीन डिबेंचर्स एंड द शेयर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट अ लोन, whereas shares are a part of the capital of a company, ओके, ठीक है। डिबेंचर से भी आप पैसे उठाते हो, शेयर दे के भी आप पैसे उठाते हो, लेकिन जो डिबेंचर होगा वो लोन का पार्ट होता है, और जो शेयर होगा वो शेयर कैपिटल का पार्ट होगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, यस, शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स एंड द ओनर्स ऑफ कंपनी, दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि ओनरशिप वाली वहां पे होती है इन केस ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओनर ही देखो कैपिटल उठाएगा, ऑल राइट, और जिससे आप लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली क्रेडिटर से आप लोन लेते हो। डिबेंचर होल्डर्स आर गोइंग टू गेट द फिक्स्ड इंटरेस्ट विच कैरीज अ प्रायोरिटी ओवर डिविडेंड। तो मैंने जैसा आपको हायरार्की बताया था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले जितने भी आपके डिबेंचर होल्डर होंगे, लोन होल्डर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, उन सबको पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इंटरेस्ट होल्डर्स जितने भी होंगे पहले उनको पेमेंट किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट इनका होता है। शेयर्स में शेयर शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड विद अ वेरिंग रेट, ओके। आई एम क्वाइट अनश्योर कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ना सेम पैलेट का हो गया है कलर जो भी मैंने लिखा है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? मुझे दूसरा कलर यूज करना चाहिए था, वो टेम्पलेट में ही था, ओके, चलो, हाँ बस थोड़ा सा मैनेज कर लो, ज्यादा नहीं। Debentures can be issued at discount without restriction. Debenture holders don't have any voting rights. ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स को देखो डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है, इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वोटिंग राइट सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास ही होगा। और शेयर होल्डर जो शेयर्स होंगे दे कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, वो हमेशा प्रीमियम और ऐसे ऐसे पार पे इशू होता है। खैर ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस आप बस ये मेजर ध्यान रखिए, डिबेंचर एंड शेयर्स। डिबेंचर लोन होता है और इस पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो शेयर होता जो शेयर्स होता है इट्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, इस पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। वोटिंग राइट्स होती हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्टर मीटिंग्स भी हम लोग करेंगे, but before I go with this, I want to discuss with you this thing. Section 135, CSR. Very important, very important, very important concept for your CLAT PG or whatever exam you are planning for.
ठीक है, जितने भी आपके एलएलएम एग्जाम हैं या क्लैट पीजी का आप दे रहे हो, तो ये सीएसआर जो कंसेप्ट है इन कंपनीज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इफ यू पीपल हैव रेफर्ड द प्रीवियस ईयर पेपर, यू माइट हैव सीन अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इट, और रिसेंटली आया था। सेक्शन 135 it talks about CSR, corporate social responsibility. So as the name suggests, corporate social responsibility, तो corporate की भी कुछ social responsibility होती है। The reason to that is, देखो, corporate form करना is not a simple thing. It actually requires a lot of asset. Effort तो बेटा लगता ही है, asset भी बहुत लगता है। आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए, आपको प्लांट चाहिए, आपको लोग चाहिए, लेबर चाहिए चलाने के लिए। फिर उनको कंट्रोल करने के लिए आप मैनेजर अपॉइंट करोगे, सुपरवाइजर अपॉइंट करोगे, फिर एक मिडिल मैनेजमेंट बैठाओगे, फिर मिडिल मैनेजमेंट को भी आप रेगुलेट करने के लिए आप टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठाओ। अरे इट्स लाइक क्रिएटिंग अ होल टाउन। ठीक है, सो कॉर्पोरेट मेकिंग अ कंपनी इज नॉट एन इजी थिंग, ऑब्वियसली। काफी बहुत लंबा चौड़ा होता है उसका भी। ठीक है, लंबा चौड़ा प्लान बनाना होता है, सारी चीजें अरेंज करनी होती है, पैसे से लेके रिसोर्सेज से लेके सारी चीजें। तो बात ये है कि जब आप स्टेट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, लोगों के रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर रहे हो, सो डोंट यू थिंक दैट द कॉर्पोरेट हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू द सोसाइटी। आप लेबर यूज कर रहे हो, आप जगह यूज कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यू माइट बी नीडिंग ऑब्वियसली रॉ मटेरियल उसके लिए चाहिए होता है। जैसे एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट चाहिए, तो बॉक्साइट आपको कोई ऐसे लाके तो देगा नहीं थाली में, कैसे? आप माइंस में जाओगे, मतलब जो भी है वहां पे बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कराओगे अपने प्लांट में, फिर उसको जो भी है रिफाइनरी उसकी होगी। सो इट इज अ ह्यूज प्रोसेस. So don't you think that if you are utilizing, if you are using the state resources, so you have got this kind of responsibility to give it back to the society? यहीं से ये कंसेप्ट आया। ये जो सीएसआर था ना, ये पुराने वाले एक्ट में आपका नहीं था, एज अ प्रिंसिपल ही यूज होता था। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब होता है आपका अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो वहीं से ये कंसेप्ट उठ के आया है कि भाई ठीक है, आप सारी चीजें यूज कर रहे हो तो आपकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप वापस दो सोसाइटी को। तो वहीं से आपका ये सीएसआर कंसेप्ट आया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135, सेक्शन नंबर याद रखिएगा, चाहे किसी और का याद रखिए ना रखिए, इसका तो आप जरूर याद रखिएगा। इसके जितने भी फिगर्स दिए गए हैं वो भी याद रखना है आपको। Section 135, it talks about CSR. So every company having net worth more than 500 crore, turnover more than 1000 crore and net profit more than 5 crore. ये तीनों फिगर्स आपको याद होने चाहिए. All right. Okay. So every kind of company having this kind of figures, they are required to constitute a CSR committee. ठीक है, ऐसी कंपनी को सीएसआर कमिटी फॉर्म करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये सीएसआर कमेटी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, सीएसआर कमेटी तो ये सीएसआर का काम करेगी। क्या काम करेगी वो मैं भी बताती हूँ। सो एवरी कंपनी हैविंग दीज फिगर्स दे शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमेटी, एंड इस कमेटी में बेसिकली 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, एंड आउट ऑफ देम एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम नेटवर्थ का मतलब तो असेट्स हो गया, राइट? हाँ, टर्नओवर का मतलब सेल्स हो गया। टर्नओवर मतलब भाई वापस कंपनी कितने इन्वेस्ट कर रही है वापस। ओके ओके ओके। एंड नेट प्रॉफिट जितना भी मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाइक। हाँ हाँ, ठीक लास्ट है। फाइनेंशियल ईयर में कितना हो। ओके। अच्छा हाँ, एक और चीज और दी गई है। ओके, एज पर द क्लॉज 1, नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट, तो तीनों में से आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो
These type of companies should constitute a CSR committee, and that CSR committee should comprise 3 or more directors. Minimum there should be a 3 directors or more directors, and at least 1 director should be an independent director. So when we will discuss the chapter of director, then I'll talk about independent director. Independent director है तो as the name suggests ये unbiased होना चाहिए, ठीक है। एंड कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो मैं बताऊंगी जब डायरेक्टर पढ़ाऊंगी। ओके, सो देखो, सीएसआर कमिटी 3 और मोर डायरेक्टर्स एंड आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन है सीएसआर कमिटी का, ठीक है। नाउ व्हाट विल सीएसआर कमिटी डू? सो दे आर गोइंग टू फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड। क्या करेगी? सीएसआर पॉलिसी। बोर्ड आपको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको रेकमेंड करेगी कि भाई, भाई मतलब नॉट भाई, बट यस, दिस इज आवर सीएसआर पॉलिसी, और ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट इन्वेस्ट, जिसमें आप स्पेंड कर सकते हैं अपना सीएसआर अमाउंट। एंड those list of activities is being mentioned under Schedule 7 of Companies Act. आप Schedule 7 जरूर आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको दिखेंगे जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोविजन मिलेगा आपको, एजुकेशन से मिलेगा, हंगर इराडिकेशन है, नेचुरल हेरिटेज है, इन सब के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। एक फंड वाला भी आपका है, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है। कई तरीके हैं, ठीक है। मतलब लाइक इन आई बिलीव 10 से 12 आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या आपको याद करना है वो सारे पॉइंट्स? नहीं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कौन कौन से सीएसआर एक्टिविटीज होते हैं। सो दिस लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज इज बीन मेंशन अंडर शेड्यूल 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो सीएसआर कमिटी है, फर्स्टली दे आर गोइंग टू से कि इनकी ये सीएसआर पॉलिसी है, दिस इज द amount which has, I mean, these are the list of CSR activities on which the CSR amount has to be spent, ठीक है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी बताएगी। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी एक आपका डिफाइंड होता है, वो भी मैं बताती हूँ। एंड दे आर गोइंग टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो दीज आर द वर्क ऑफ सीएसआर कमिटी। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? इतना कुछ काम बता दी सीएसआर कमिटी। आफ्टर दिस द बोर्ड इफ सेटिस्फाइड, दे आर गोइंग टू अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी एंड डिस्क्लोज इट इन द रिपोर्ट एंड आल्सो प्लेस इट ऑन कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद बोर्ड ऑब्वियसली अप्रूव करेगी, उसको समझ में आएगा तो उसके बाद अपने वेबसाइट पे डाल देगी। एंड द बोर्ड इज गोइंग टू इंश्योर एक्टिविटीज आर प्रॉपर्ली कैरिड आउट बाय द कंपनी। वेबसाइट पे यही रहेगा कि देखो हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीएसआर, ठीक है। सीएसआर एक्टिविटीज में आपको कितना स्पेंड करना है? द बोर्ड मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding financial year। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीएसआर अमाउंट कितना है? 2% है। 2% of the average net profit which has been earned by the company during immediately 3 preceding financial year, that's it, ठीक है। This is the amount of CSR, and if the amount remains unspent then board must specify the reason। और इसमें से अगर कुछ बच गया तो बोर्ड को स्पेसिफाई करना होगा रीजन को, और भी होगा, ठीक है। अनस्पेंट होगा तो उसके बाद क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बट यस, इज इट क्लियर दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीएसआर? टाइप यस और नो। वंस मोर, देखो, the CSR amount has been already mentioned under section 135, that is 2% of the average net profit। देखो, इसको मैं प्रैक्टिकल करके बता सकती हूँ। देखो, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना, तो मान लो लास्ट ईयर का ये है, लास्ट टू लास्ट ईयर इतना है, लास्ट टू लास्ट ईयर ये, ठीक है, 3 साल है ये। लास्ट ईयर मान लो कितना, 50 करोड़ प्रॉफिट हुआ। बाद में 60 करोड़, अरे उसके पहले 60 करोड़ था, उसके पहले 70 करोड़ था, ठीक है। तो मतलब अभी क्या साल चल रहा है? 2023 चल रहा है ना, तो ये 2022 का था, ये 2021 का था, ये 2020 का।
शायद मैं सही कर रही हूँ। अब एवरेज लिखा है, तो इन तीनों का एवरेज कितना हुआ? 50 प्लस 60, 110, 110 प्लस 17, अरे 110, 70 कितना? 180। एवरेज करोगे बाई 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 फिगर्स दिए हैं। ठीक है, मैथ्स है बेटा, आपको नहीं करना है, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज 2%। ठीक है, अब 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ? 60 करोड़ हुआ। तो 60 करोड़ का 2% आपका जाएगा CSR अमाउंट। कितना हुआ? 1.2 करोड़। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। ठीक है, 2% of the average net profit made during 3 immediately preceding financial year. ठीक है, this is what. I hope it is clear now. यार इसमें कर्सर गायब हो जाता है, just a minute. ओहो, चलो, what happened? Just a minute. Just a minute. Now, that was the CSR amount. What is that? 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. That's it. Now, when the company makes default, तो penalty क्या लगेगी? Penalty will be 2 times of the amount required to be transferred by the company to the Schedule 7 fund or the CSR account. Now, once you have to understand ये Schedule 7 fund और CSR account ये क्या है? ठीक है, ये मैं बताती हूँ अभी. So, what will happen if the company fail to spend the CSR amount? If it is ongoing project and if it is not ongoing project, ये आपको clause 6-7 में मिल जाएगा. तो देखो, 2 तरीके के प्रोजेक्ट हो सकता है कंपनी चलाए, या कोई भी दोनों में से कोई भी चला सकती है, नॉट ऑन गोइंग या ऑन गोइंग. जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, जैसे 2 या 3 साल तक का होगा. बट जो नॉट ऑन गोइंग होगा वो आपका लॉन्ग टर्म का होगा. ठीक है, हो सकता है 3 से ज्यादा साल लग रहे हैं. इसका कहीं मतलब लाइक कंपनीज एक्ट में तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया है कि लाइक what are non-ongoing project और what are ongoing project. So supposedly कोई भी short term वाले projects है, if the company has company is spending that CSR amount on ongoing project and उसमें से कोई भी amount अगर बच गया है, तो that amount will be transferred within 30 days to the unspent CSR account. इस नाम का आपको बैंक अकाउंट में एक अकाउंट खोलना होगा अंडर द नेम ऑफ अनस्पेंट CSR अकाउंट, और उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जितने भी अनस्पेंट होगा. ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अगर मान लो लॉन्गर टर्म का है, तो उस केस में आपका जो अनस्पेंट अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द शेड्यूल 7 फंड्स. ठीक है, शेड्यूल 7 फंड्स में कई तरीके के फंड्स दिए गए हैं, जैसे PMRF दिया है और भी कई तरह के रिलीफ फंड्स दिए गए हैं. तो उसमें से किसी में भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, शॉर्ट में ये सरकार को दे दो, सरकार देख लेगी. ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का भी ये आपका अनस्पेंट CSR अकाउंट आप बैंक अकाउंट में आप खुलवाएंगे. ठीक है, बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे अंडर द नेम ऑफ अनस्पेंट CSR अकाउंट, और विद इन 30 days यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द अनस्पेंट CSR अमाउंट. ठीक है, Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, I do not understand what do you mean by an ongoing project and Ongoing are the shorter term projects. देखो, there are plethora of the activities given under Schedule 7. अगर मान लो आप हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए कंस्ट्रक्ट करने में, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. और वही अगर मान okay. हंगर जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर कुछ हुआ है, तो आप उसमें ये रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है. देखो, वही बात बता रही हूँ ना, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे तो फिलहाल अभी तक नहीं मिला है. ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो फिर एक बार मुझे भी बताना. तो नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब थोड़े लॉन्गर टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है कंपनी को. Okay. यस.
एंड जो ऑनगोइंग है दैट इज आपके shorter term projects. शॉर्टर टर्म. आई बिलीव मैंने यहाँ पे ऑपोजिट तो नहीं बोल रही हूँ. नॉट ऑनगोइंग, ऑनगोइंग. I'll just confirm it and हाँ let हाँ her हाँ, know. ठीक है. Okay. आई बिलीव Ma'am, ऑन. for this, do we need to read the CSR rules as well? See, for CSR, I must recommend you to remember these figures क्योंकि ये पूछा जा चुका है. ठीक. Okay. The constitution of CSR committee. All right. Okay. Next is what are the functions of CSR committee? ठीक है. Okay. Next, what is the CSR amount? ठीक है. Okay. The list of CSR activities is being given under Schedule 7. ठीक है. Yes. हाँ, you don't have to remember the entire list of Schedule 7. एक बार बस ऊपर से पढ़ लेना. ठीक है. Okay. ओके. राइट. एंड पेनाल्टी वगैरह तो नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल लेट्स डू इट. So I hope that you have understood Schedule 7 fund in case of not ongoing project. I believe मैंने opposite बोल दिया है. स्वैप कर लो उसको. ऑनगोइंग का तो मतलब ही हुआ कि आपके लंबे टर्म के लिए चल रहा है, तो ऑनगोइंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट और नॉट ऑनगोइंग विल कम अंडर द शॉर्टर टर्म प्रोजेक्ट. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से. ओके. नाउ इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट, मतलब ना उसने सीएसआर अमाउंट स्पेंड किया, ना ही उसने ट्रांसफर किया शेड्यूल 7 वाले फंड में या सीएसआर अकाउंट में, तो कितना होगा? 2 times of the amount to be transferred or 1 crore whichever is less. तो ये पेनाल्टी लगेगी कंपनी पे. एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट उसको भी 1/10 ऑफ अमाउंट देना पड़ेगा. ठीक है. इससे पीनल वाला नहीं पूछता है, बट यू नेवर नो, इट कैन बी आस्क्ड. नाउ एक और छोटा सा पॉइंट है एंड दैट वाज अमेंडेड बाय 2021 शायद आया था. क्लॉज 9 ऐड हुआ था आपका, दैट इफ द सीएसआर अमाउंट इज लेस देन 50 lakhs. जो मैंने एवरेज निकाला था ना, अगर मान लो वो एवरेज 50 lakhs आ रहा है, तो उस साल कंपनी को सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. जो 50 lakhs है या लेस देन 50 lakhs आपका जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकला है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आप निकाल के जो सीएसआर अमाउंट निकाले, इफ दैट इज less than 50 lakhs, then you are not required to form CSR committee separately. The board of directors will handle the entire situation. They are going to formulate it. They are going to spend the CSR amount. That's it. ठीक है, ये आपका clause 9 में दिया है. Okay, so that was all about CSR. Okay, chalo. Then in the next class, I'll start with meetings and what is left. Directors are left. और भी हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. ठीक है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, could you please open the Bare Act of Company Law and just tell what are the important provisions? I'll tell you. In the next class, I'll tell you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Once I'm done with the entire concepts now, I'll Okay. myself tell you that what are the important sections you have to remember. Okay. 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 Is there any doubt with respect to today's class? Archana, that will be the next week, most probably next Wednesday. Ma'am, what did we cover yesterday? You can watch the video. Okay, is it uploaded on the portal? I did not Also check. available on YouTube also. Okay, okay. Yes. Okay. Chalo, I'm signing off right now. Okay. Let's meet up next week. Okay. Chalo. Thank you.